ہے, کئی گنا زیادہ عطا کرنے والا ہے. وہ پوچھے گا کچھ چاہیے مانگو, جنتی کہیں گے, اور شہداء کہتے ہیں کیا چاہیے, جنت کی فضاؤں میں گھومتے ہیں اور جنت کے پرندوں کے سبز پر ملے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ میسر ہے. وہ کیا اور التجا کر سکتے ہیں اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ آخر وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم دنیا میں جا کر دنیا والوں کو بتا کر آئیں کہ یہ تعمیریں, یہ عمارتیں, یہ بلڈنگیں, یہ زمینیں, یہ ڈگریاں, یہ سٹار, ان کی کیا حیثیت ہے اور رب کے نام پر جانے کی کیا حیثیت ہے, ہم یہ بتا کر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حتمی فیصلہ ہے کہ واپس دنیا میں نہیں جانا, یہاں جو مانگنا ہے وہ مانگو اور جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا. اور دوسرے جنتیوں کے بارے میں بھی اللہ رب الجلال نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے من میں آئے گا, جو تم مانگو گے, جو تم چاہو گے وہ ملے گا, لیکن واپس دنیا میں نہیں آنا. اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو اور اس کی قدر کرو, اس کی قیمت کرو اور اس کا احساس کرو. یہ بار بار ملنے والی زندگی نہیں ہے. ہمارے ساتھیوں میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں بھائی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس مت کرو, یہ زندگی اتنی قیمتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, چونکہ ایک مرتبہ ملی ہے. بار بار دنیا میں نہیں آنا, ایک ہی مرتبہ آنا ہے. اور جب ہم ایک مرتبہ آئے ہیں تو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائیں, کچھ لے کر جائیں. دوستوں اور بزرگوں, بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی دور کی بات نہیں, ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے خالی بدن ہوتا ہے, جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا اور غیر مختون شکل میں بچہ پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے یہ بھائی اور روزانہ ہمارے ساتھی جب دنیا سے جاتے ہیں کیا لے کر جاتے ہیں؟ ایک کفن ہوتا ہے اور سفید 3 چادریں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ یہاں سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا, سب یہاں چھوڑ کر جانا ہے. جانے والے ساتھ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں, جن کے بارے میں فرمایا اللہ رب الجلال نے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں اس لیے پیدا کیا, یہ موت اور زندگی اس لیے عطا کی. یہ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, یہ حیات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, کون اعمال صالحہ کرتا ہے. اور موت کا تذکرہ پہلے کیا, حیات کا تذکرہ بعد میں کیا. اس لیے ہمیں موت کو پہلے یاد کرنا چاہیے. قرآن کریم میں الذی خلق الموت والحیات, موت کو پہلے بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم موت کو بلا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات الموت. اے لوگو, زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو مٹا دینے والی, لذتوں کو پھیکا کر دینے والی یہ موت ہے. اس موت کو یاد کرو. ہم روزانہ دن میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ جب ہم معاملات میں ہوتے ہیں, جب ہم ضروریات میں ہوتا ہے, ہمیں موت یاد نہیں آتی, ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھولے رہیں تب بھی موت آئے گی, ہم یاد رکھیں تب بھی موت آئے گی. لیکن اگر ہم بھولے رہیں اور بھولے ہوئے حالت میں موت آئی تو ہمیں شرمساری زیادہ ہوگی, اور اگر ہم روزانہ موت کو یاد کرتے رہے تو پھر شرمساری زیادہ نہیں ہوگی. فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات الموت, زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو مٹا دینے والی, لذتوں کو پھیکا کر دینے والی موت آتی ہے. ساری لذتیں کڑوی ہو جاتی ہیں. قبر میں چلا گیا آدمی, قبر میں رکھ دیا گیا, کوئی مونس نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے, کوئی بسترے کا انتظام نہیں ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. قبر کی یہی پوزیشن ہے, وہاں تاریکی ہے, وہاں اندھیرا ہے. اگر وہاں اجالا ہوگا, روشنی ہوگی, مونس اور ساتھی ہوگا, غم گسار اور ساتھ دینے والا ہوگا. وہ اعمال صالحہ ہیں, وہ فرائض ہیں, وہ 5 ٹائم کی نمازیں ہیں.
जिन नमाजों की पाबंदी की आज हद ताकीद की गई है, वो नमाजें, वो कुरान करीम की तिलावत है, वो सदका और खैरात हैं, वो अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, या जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी अमाल सालिहा हैं, वो कब्र में काम आएंगे। आज अगर कोई जाने वाला ऐसा जा रहा है जिसके 10 बेटे हैं, उन बेटों में से 10 बेटों में से किसी को कहो कि आप 1 घंटा वालिद की कब्र में ट्राई के लिए वैसे ही चले जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, कोई सोने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो औलाद, वो माल, वो बीवी, वो सारे के सारे अकारिब सब यहाँ ही रह जाते हैं। कब्र में तन्हा जाना है। कब्र को याद रखो, हमेशा कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। फरमाया जो कुछ इस रूए जमीन पर है सब ने फना हो जाना है। एक दिन ऐसा आने वाला है, यौमा तो बद्दलुल अर्दो गैरल अर्दे वस्समावातो व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। ये जमीन बाकी नहीं रहेगी, यह आसमान बाकी नहीं रहेगा, यह जमीन बदल दी जाएगी, यह आसमान बदल दिया जाएगा। और फरमाया ला तरा फीहा एवजम वला अमता, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई टाका टेरी नहीं होगी, प्लेन जमीन होगी। और उसमें रब्बे जुल जलाल के दरबार में और अल्लाह फरमाएगा लेमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज हुक्मरानी किसकी है, आज निजाम किसका है, आज पावर किसका है। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर खुद अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अकेले अल्लाह का है, अकेले अल्लाह का हुक्म चलेगा, किसी का हुक्म नहीं चलेगा, किसी की बहादुरी नहीं चलेगी, किसी की शुजात नहीं चलेगी, किसी की दौलत नहीं चलेगी, किसी की कोई बड़ाई नहीं चलेगी। चलेगा तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। लिहाजा वो बड़ा मुश्किल दिन होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाएगा कि जन्नत का हिस्सा अलग करो, जहन्नम का हिस्सा अलग करो अपनी औलाद में से। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि जन्नती कितने हैं और जहन्नमी कितने हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा कि 1000 में से 1 जन्नत का मुस्तहिक है, 999 जहन्नम के मुस्तहिक हैं। वही वो दिन है जिसके बारे में कुरान करीम में फरमाया यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और वही वो दिन है जिसके बारे में फरमाया व तरन्नास सुकारा व मा हुम बेसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। आप देखेंगे, महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये लोग बेहोशी के आलम में हैं, नशे के आलम में हैं। हालांकि नशा नहीं होगा, वो अल्लाह का अजाब होगा और वो अल्लाह का शदीद अजाब होगा जिसमें वो 2-4 होंगे। ये अफसाने नहीं हैं, किस्से और कहानियां नहीं हैं। मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै। कुरान करीम है, नस्से कतई है, अल्लाह का फरमान है और रसूलुल्लाह की तालीमात हैं। हर एक ने जाना है, हर एक ने दुनिया छोड़नी है, हर एक ने अपने अपने अमाल का हिसाब देना है और तनहा देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वकुल्लुहुम आती है यौमल क़यामत फरदा, हर एक अकेला अकेला हाजिर होगा। ना बिलादरी साथ होगी, ना मेजॉरिटी साथ होगी, ना दौलत साथ होगी, ना इक़्तिदार साथ होगा। वकुल्लुहुम आती है यौमल क़यामत फरदा, हर एक अकेला अकेला रब के दरबार में हाजिर होगा। अकेले अकेले जवाब देना है, हर एक ने जवाब देना है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोक लो, इनसे सवाल होने वाला है और पूछा जाएगा एक एक लम्हे के बारे में, एक एक मिनट और सेकंड के बारे में। और सवाल होंगे उनमें मसलन हमारी अगर नमाजें कज़ा हैं, नमाजें ज़ाया हैं, नमाजें बर्बाद हैं, एक एक नमाज के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, नमाजें वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई हैं। एक आदमी है, मिसाल के तौर पर अगर उसे 50 साल उम्र मिली है और रोज़ाना उस पर 5 नमाजें फ़र्ज थी,
उससे पूछा जाएगा, हिसाब जोड़ा जाएगा, कितनी नमाजें अदा की हैं और कितनी नमाजें अदा नहीं की। नमाजों के बारे में सबसे पहले अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा वो नमाजें हैं। फ़इन सलहत सलह सायरुल अमल, अगर उसकी नमाजें दुरुस्त हैं तो गोया सारे अमल दुरुस्त हैं, अगर नमाजें बर्बाद हैं सारे अमाल बर्बाद हैं। इसी तरह आज हमारे इस माशरे में, समाज में बेइंतहा बुराइयां हैं, फवाहिश है, बेहयाई है, और इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए दुनिया भर के खुराफात हैं। अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अपने कानों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक ज़बान, कान, आंखें, दिल, हर एक के बारे में सवाल होगा, हर एक के बारे में पूछ होगी, हर एक के बारे में मुआखज़ा होगा। हमने जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारनी शुरू कर ली, गोया कोई पूछने वाला नहीं। ये मत तसव्वुर करो। फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया, क्या तुमने ये सोच लिया, क्या तुम्हारा ये तसव्वुर है कि अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, हमने तुम्हें अबस पैदा कर दिया, बेमकसद पैदा कर दिया, बेफ़ायदा पैदा कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ज़रूर तुम्हारी पैदाइश का एक मकसद है। इंसान की पैदाइश का मकसद है, बेमकसद इंसान को पैदा नहीं किया गया। और वो मकसद भी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ने बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, अल्लाह ही की इबादत करनी है, वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है। और यही हुक्म दिया गया है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ये मौत की महफिल है, मौत की निस्बत से हम हाजिर हुए हैं। हमें हमेशा मौत को याद रखना चाहिए, मौत की तैयारी करनी चाहिए। हम चाहें तब भी मौत आएगी, हम न चाहें तब भी मौत आएगी। और मौत कब आएगी? वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने किसी नबी, किसी यानी मुकर्रब बंदे को भी नहीं बताया। ये गैब से ताल्लुक़ रखने वाली 5 चीज़ें हैं। फ़ी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, वो 5 चीज़ें जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उनमें से एक ये मौत भी है। मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, मौत किस हालत में आ जाए किसी को पता नहीं, न ज़र्फ़ का पता, न ज़मान का पता, न टाइम का पता, न जगह का पता। मौत कब आती है? घर से लोग निकलते हैं, अच्छी खासी तैयारी करके निकलते हैं, फलां फलां काम सोच कर जाते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, वहीं सारे के सारे प्लान फेल हो जाते हैं, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इंसान नहीं जानता कब मौत आ जाए, किस हाल में मौत आ जाए। इसलिए हम अपने सारे अहवाल को सुधार कर रखें, अच्छे अंदाज से रखें और हमेशा इस तैयारी में रहें कब मौत आ जाए, कब हमें लब्बैक कहना पड़े तो हमें जाना पड़े। इसलिए हमेशा मौत की तैयारी रखो, हमेशा मौत को याद रखो, हमेशा मौत की फ़िक्र करो, हमेशा आखिरत की फ़िक्र करो। यह दुनिया की ज़िंदगी में रब ने हमारे नाम पर जो लिखा हुआ है वो मिल के रहेगा। हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जफ़ल कलम मान तलाक, कलम लिख कर खुश्क हो चुकी है, जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है अब ना तुम्हारे मुकद्दर में और कुछ लिखा जाने वाला, और ना जो मुकद्दर में लिखा हुआ है उसमें से कुछ कम होने वाला। लिहाजा दुनिया के लिए उतनी दौड़ धूप करो जितनी मुकद्दर में है वो मिल के रहेगी, और दुनिया के लिए इतनी दौड़ धूप करो जितना हमने यहाँ रहना है। हमें नहीं मालूम कोई 50 साल रहेगा, कोई 60 साल रहेगा, कोई 80 साल रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की अक्सर उम्रें 60-70 साल के दरमियान होंगी। लिहाजा हमें इसके लिए, मौत के लिए हमेशा तैयारी करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा
عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین احکم الحاکمین حاضرین مجلس کے آبا و اجداد ایمان والے جو دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. خاص کر یہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے, مسکین انسان ہیں, ہم سارے گواہی دیتے ہیں یہ شریف آدمی تھا. اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو اچھائیاں ہیں جو نیکیاں ہیں ان کو قبول اور منظور فرما, جو کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر اور معاف فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, ورثہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.